آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ پرائمری اسکول تولی 1 کے اندر بلڈنگ ہے جہاں پہ 60 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اس بلڈنگ کی کنڈیشن دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ جس بلڈنگ کا چھت نہیں ہے وہاں پہ تعلیم کیسے حاصل کی جا رہی ہوگی۔ آپ خود یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کتنا لاپرواہ ہے اور بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا چھت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ بچے کیسے بیٹھتے ہوں گے اور کیسے تعلیم حاصل کرتے ہوں گے۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں دینک اسٹیٹ سماچار میں آپ کے ساتھ رجندر سنگھ۔ جیسے کہ دینک اسٹیٹ سماچار کی ٹیم جو ہے ہر گاؤں کا دورہ کر رہی ہے۔ ہم نے کل بھی سوت کا کیا اور آج ہمارا تولی کا دورہ تھا جہاں کے ایک بہت بڑا خلاصہ کھلا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا۔ ایجوکیشن جو کہ ہماری بیسک ہے ایجوکیشن، جبکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ایجوکیشن کی بہت زیادہ بری تباہی کر دی ہے۔ آپ کو میں بلڈنگ کی تصویریں بتاؤں گا اور آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہاں سے ہمارے بچے KPS IPS IAS کے سپنے لے سکتے ہیں۔ آپ ان بلڈنگز کی تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کتنا لاپرواہ اور بچوں کے ساتھ کتنی ناانصافی کی جا رہی ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے کتنا لاپرواہ، جبکہ چھوٹے چھوٹے غریبوں کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے بچے جو ہے ان کا کوئی بھی جو ہے ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے کسی بھی گریڈ میں ہے تو ان کا بچہ اس اسکول کے اندر تعلیم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ اچھے سے تعلیم نہیں کروائی جاتی ہے اور یہ اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکولس میں ڈالتے اور غریب لوگوں کے بچوں کی زندگی کے ساتھ یہ کھیل رہے۔ اور اس سلسلے کے اوپر آج ہمارے ساتھ نائب سرپنچ تولی کے جڑ چکے ہیں اور یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر بات چیت کرنے ہیں، جبکہ انہوں نے بھی یہ اسکول کی بلڈنگ کی خستہ حالت دیکھی۔ تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ بچے یہاں کے بچے جو کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا دینک اسٹیٹ سماچار میں سواگت ہو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اس اسکول کی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن سے بچے KPS IAS کا سپنا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، ایجوکیشن ہی ایک ایسی واحد شے ہے جو ہم لوگ اس کو حاصل کریں گے اور وہ ہمارے سے کوئی ہائیڈ نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ جنوبی افریقہ کے انقلابی رہنما لیڈر جو تھے وہاں کے نیلسن منڈیلا، انہوں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ ایجوکیشن ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے اس اسکول کی بات کی ہے جو یہ وارڈ نمبر 6 تولی لاہور B کے اندر مغل محلہ میں اسکول ہے، اس کی بہت خستہ حالات ہے۔ تو پیچھے کچھ سال پہلے ایک ارتھکویک ہوا تھا، اس سے یہ اسکول کریک ہو گیا تھا۔ آفٹر دیٹ کیا ہوتا ہے، 2019 کی بات ہے، بہت تیز آندھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ٹین ہے چھت کی وہ اڑ کر، یہ بہت بڑا نالا ہے نیچے، کم سے کم 2-3 کلومیٹر ہائٹ ہے اس کی، وہاں پہ ٹین اڑ جاتی ہے کوئی کہیں۔ اس کے بعد وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی، انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہم نے یہاں کے متعلقہ سرپنچ کو بھی ہم نے انفارم کیا، اس کے بعد زیڈیو صاحب کو لیٹر بھی دیا، لیکن اس پہ آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ بہت بدترین حالات ہے وہاں کی اس اسکول کی۔ میں بھی ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ ایجوکیشن ہی ایک ہمارے پاس ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آگے جا سکتے ہیں، اور دنیا کی جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ محض ایجوکیشن کی وجہ سے ہی آگے گئی ہیں، یہاں تک پہنچی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی کنٹریز کہاں پہ جا کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آج بھی ہمارے بھارت کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اتنی بدترین حالات ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظوں میں۔ کیا جبکہ ایسی کنڈیشن ہمارے دیش کے اندر ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، کیا اس کنڈیشن میں ہمارے بچے کسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، کہاں پہنچیں گے؟ پچھلے 2-3 سال سے اگر وہاں پہ بلڈنگ ہی نہیں ہے، کہاں بچے بیٹھتے ہوں گے، کیسے آتے ہوں گے، ان کے پیرنٹس کیسے ٹرسٹ کرتے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجیں اور تعلیم حاصل کریں؟ میں سر آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ اسکول نہیں ہے، آپ وزٹ کریے اسکولوں میں جو تولی ولیج ہے، اس کے اندر 4 پنچایتیں آتی ہیں، ان کے اندر جائیے، مجھے نہیں لگتا 1 یا 2 اسکول کو چھوڑ کر کہیں پہ واش روم انسٹال ہو۔ اتنی مطلب خستہ حالات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمے بھارت کے اندر SBM سوچھ بھارت مشن ابھیان چل رہا ہے، لیکن آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں، آج بھی وہ قدیم دور ہے ہمارے لوگوں کے لیے، آج بھی وہ کھلے عام لیٹرین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھو نقصان کیا ہے۔ جو بارشیں ہوتی ہیں، جو لوگ اوپن جاتے ہیں لیٹرین کے لیے، تو جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیے، خود جانیے، بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کہاں جا کے ملتا ہے اور ہم لوگ کیا پیتے ہیں؟ آج تک مطلب کوئی بھی اسکیم جو ہے گراؤنڈ لیول پہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے
इतना यूजलेस है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल तबाही है, बिल्कुल बर्बादी। हमारे 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को सर देखकर इंग्लिश उर्दू नहीं आता है, क्या तरक्की करेंगे? क्या IAS IPS तो उनको पता ही नहीं ये क्या चीज होती है, कहाँ से तरक्की करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जबकि हमें वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत हमारी जानकारी के मुताबिक हमें ये भी पता चला, पहले तो बिल्डिंग नहीं, और साथ में हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे अभी तो फिलहाल कोविड-19 चल रहा है कि वहाँ पे कुछ उस्ताद भी है जो स्कूल में हाजिरी नहीं लगाते और स्कूल आते ही नहीं है, जबकि बच्चे घर से आते हैं और अपना टाइम पास करके चला जाता है। देखिए सर, एग्जैक्टली देखिए, हमारे जितने भी स्कूल है वहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे मैंने विजिट किया और जज किया है। मोस्टली 12 या 10 टीचर्स होते हैं, उनमें से 2 या 3 मुश्किल से वहाँ पे पहुंचते हैं। अगर आप बात को हाईलाइट भी करना चाहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, ऐसे जैसे मतलब अंधों में काना राजा और जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट का कानून इम्प्लीमेंट है हमारे खास करके। मैं एक तूली की बात नहीं करना चाहूंगा, हमारे पूरे ब्लॉक में आप किसी भी जगह जाइए, स्कूलों में जाइए, बच्चे कहीं बैठे होते हैं, किसी और एक्टिविटीज में होते हैं, टीचरों को पता ही नहीं, वो अपने नशे में है। टीचरों ने बिजनेस शुरू कर दिया, हर टीचर ने। कैसे हमारे बच्चे आगे कैसे एक चीज और हमें जहाँ तक हमारी जानकारी के मुताबिक है कि अगर किसी स्कूल में 5 टीचर्स है तो एक आता तो बारी बारी वो छुट्टी पे रहते। अभी तो कोविड-19 है, तो कोविड-19 के पहले या फिर उसके बाद बीच में लॉकडाउन खुला था, उसके दौरान भी हुआ कि वो क्या करते हैं 7, 8 या 10 दिन के बाद आएंगे, 1 महीने के बाद आएंगे, तो आने के बाद वो क्या करते हैं कि अराइवल को एक ही दिन में साइन करते। क्या ये सही बात है? बिल्कुल एग्जैक्टली, इस पे मैं बिलीव करता हूँ और मैंने खुद जज किया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो वो टीचर तबका है वो हमारी बात को सुनेगा तो वो यही चीज कहते हैं, जी ये तो ऐसे ही मारते हैं सट्टे। लेकिन मुझे इस चीज का बहुत बड़ा अफसोस है कि हमारी कौम को बिल्कुल ऐसा जहर दिया जा रहा है, ऐसी अंधेरा एक गुफा की तरफ इनको धकेला जा रहा है, जिससे हमारी कौम बहुत ही आने वाले समय जो है, इनका जो फ्यूचर है बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरे में। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना लापरवाह तो हमारा देश डेवलपमेंट कर सकता है इस कंडीशन में? सर देखिए, आज आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो करप्शन है, चाय और पानी, मतलब पानी की जगह या चाय की जगह करप्शन दी जा रही है। आप किस डेवलपमेंट की बात करते हैं सर? आज भारत को आजाद हुए 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आप ये चीज सोचे, क्यास करें कि आपने भी पिछले दिनों में बन्ना का विजिट किया है, देखो आज भी मतलब कितने किलोमीटर आप वहां पे चल कर गए हैं, उन लोगों के क्या खस्ता हालात है। आज भी अगर इस डिजिटल इंडिया का एक स्लोगन दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग अगर अपने कंधों पे 30-40 किलोमीटर सामान उठाकर कैरी करते हैं, सर ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरी तरफ देखा जाए, लोग चांद पे रिहाइश पजीर हो चुके हैं और आज हमारे लोगों की वही हालात है। अगर कोई बीमार हो जाता है सर, 4 पाई का अरेंज करके वो कितना दूर है, 20-30 किलोमीटर से हटाकर गाड़ी तक पहुंचते तक बहुत सारे लोगों का सांस ही रुक जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरी चीज हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि गवर्नमेंट के थ्रू तो चलो बिल्डिंग्स आ जाती है, उसके बाद जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वो काम लेते हैं और काम में वो क्या करते हैं कि 2 नंबरी करते हैं और क्या करते हैं कि मटेरियल जो देखिए सर, मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, ये पूरा फॉल्ट मैं इन पे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगाना चाहूंगा। क्यों? कि ठेका अगर दिया जाता है उसके ऊपर देखभाल करना किसका काम है? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसकी जगह ठेका भी वही लेता है। वो क्यों लेता है? ऐसी स्कीम्स किसने इम्प्लीमेंट की हुई? स्कीम्स तो ये तो सेठी साहब को पूछना चाहिए। तो ठीक है। अब पिछली बार मोहम्मद कोट के अंदर क्या हुआ, मेरी पंचायत के अंदर वहाँ पे बिल्डिंग जो हमने लाई, जबकि हमने न्यूज दे देकर वहाँ पे बिल्डिंग का बहुत खस्ता हालत थी, वहाँ पे हाई स्कूल है, जबकि हमने वहाँ पे बिल्डिंग लाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ठेकेदार जिसकी जगह है वही ठेकेदार बनता, ठीक है। अब वो क्या करता कि काम लगाने के बाद वहाँ पे मटेरियल डुप्लीकेट लगाता, और मटेरियल जब उसने डुप्लीकेट, कोई जेई है ईमानदार है, उसने काम को स्टे करो, क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं लोगों के बच्चों के साथ गिरदारी, जबकि बिल्डिंग में डुप्लीकेट मटेरियल लगा रहे हैं, जबकि 3 या 4 साल के अंदर बिल्डिंग गिर रही है। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे साथ वो कौन सा डिपार्टमेंट है। सर आपको भी कुछ समय हुआ होगा मीडिया में ज्वाइन किए हुए, आपने भी रिसर्च किया होगा, आप इस पूरे ब्लॉक चसाना के अंदर आपने जरूर विजिट किया होगा। आप मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारे साथ जस्टिस कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने अभी तक 2-3 डिपार्टमेंट को हमने पकड़ा, जो रंगे हाथों पकड़ेगी। पहला तो
मेडिकल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा लापरवाह। आप आइए सर, आपको मैं दावत देता हूँ, आप तूली में आइए, PHC तूली जो है वहाँ पे देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसके अंदर जाके देखो, वहाँ की OPD देखो, वहाँ कोई MO नहीं है सर। क्या बात करते हो, सिर्फ 2-3-4 बेचारे वो 4th क्लास में जो है बेचारे खोलने वो दरवाजा शरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं। दूसरा बाकी तो कुछ नहीं चलो सर। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो बड़ी खस्ता हालत है। वो किसी भी एरिया में देखो तो एजुकेशन का उन्होंने तो बेड़ा घर करके रखा। बिल्कुल और इन एरियो से तो बच्चे, कोई भी बच्चा जो है सपना बड़ा नहीं देख सकता, क्योंकि जब उनको बेसिक ही नहीं मिल रहा। देखिए सर, सपना कहाँ से देखेगा जब वो चीज उसके दिमाग में आएगी नहीं। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे बच्चों को, जब स्कूल जाते हैं वहाँ पे वो गाने दूसरी एक्टिविटीज में वो लग जाते हैं। टीचर्स आते ही नहीं, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। जो खास करके ये प्राइमरी स्कूल है जितने भी, इनमें क्या होता है सर, इनका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है इनमें के 2 टीचर होते हैं, किसी में 1 टीचर होता है। अगर टीचर एक जम्मू चला गया, उसको फोन करते हैं, सर हमें भी पर्सनल काम है, पीछे स्कूल बंद होता है, कोई वहां पे आता ही नहीं। जब हम ZDO से बात करते हैं, वो कहता है जी आ जाएगा, हम दूसरा टीचर भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों को बिल्कुल जहर दिया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा आपको कि हमारी आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है, इनका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ तक रही IPS IAS, मैं कहता हूँ सर 4th क्लास का जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी आप देखिए इस ब्लॉक चसाना में अभी कुछ दिन पहले ये रिजल्ट आया है 4th क्लास का, आप देखिए उस कैटेगरी में कितने बच्चों ने फाल किया है। हालांकि बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयड है, उनके बच्चे बहरूनी रियासतों में पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, वो बच्चे भी नहीं आ रहे। तो आम बच्चों का क्या होगा सर? 3-4 बजे वापस आते हैं। 10th 12th के बच्चों को देखकर इंग्लिश उर्दू नहीं आता सर, तो वो क्या करेंगे, क्या से देख के वो फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक है, डार्क नजर आता है। जबकि आप वहाँ के यूथ हो, तो आपने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना लापरवाह, आपको कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए, अपनी जनता के लिए तो लड़ने चाहिए। आप एक नायब सरपंच हो। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। सर हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किए हैं तूली के अंदर, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे मेमोरेंडम DC के पास पेश किए हैं लेके। वो हमारा एक स्कूल संगोर में था, वो लोअर तूली A में आता है, उसका हमने वहाँ पे 1.5 लाख रुपया रेनोवेशन के लिए वहाँ से सेक्शन करवाया था। और बहुत सारे स्कूलों की खस्ता हालात थी। हमने इतने बार प्रोटेस्ट किए हैं सर, और ज्यादातर इग्नोर किया जाता है। ऐसी बात नहीं है हम आवाज हमने नहीं उठाई, हर बार हम आवाज उठाते हैं। तो आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? बिल्कुल रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, अगर 100 बार हम कोशिश करेंगे तो उसका 1-आधा% मिलता है। वो भी जब खास करके हम यहाँ से मेमोरेंडम लेकर रियासी DC के पास जाते तो वहां से थोड़ा सा एक्शन होता है, 10-15 दिन उस पर अमल किया जाता है, उसके बाद फिर कोई पूछने वाला ही नहीं। माइट इज राइट चल रहा है। ये थे हमारे साथ नायब सरपंच तूली A के। इनका कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बहुत लापरवाह है और बच्चों की जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है, कि ऐसी बिल्डिंग की कंडीशन है, इस बिल्डिंग से क्या बच्चे तालीम हासिल कर सकते, जबकि बिल्डिंग का छत नहीं। आप देख सकते हैं वीडियोस में कि आप खुद देखेंगे कि बिल्डिंग का छत नहीं है। क्या उस छत के, बिना छत के बच्चे बैठ सकते हैं? बिना छत के बिल्डिंग के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? और हमने अपनी आंखों से खुद देखा कि जबकि बिल्डिंग का ऊपर से छत नहीं और आगे से लॉक किया। अब मुझे चीज की समझ नहीं आ रही है कि आगे से लॉक किया, उसके अंदर है क्या वो चीज जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुपा के रखा हुआ। क्यों हमारे बच्चों के साथ ये लोग जुल्म करें, जबकि एजुकेशन एक बेसिक चीज है और यही एजुकेशन ही हम लोगों को एक अच्छी स्टेज पर पहुंचाती है। क्या ऐसे स्कूल से पढ़कर बच्चे अच्छी स्टेज पर पहुंच सकते हैं? आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना लापरवाह और हमारा कंट्री, हमारा देश कैसे डेवलप होगा, जबकि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट लापरवाह। जो चीज हमारी बेसिक है उसी को ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है।